Hello students, now I am teaching you chemical properties of metals. Now potassium combined with oxygen, potassium oxide. Sodium combines with oxygen to form sodium oxide. Calcium combines with oxygen to form calcium oxide. Now all of these are metallic oxides. All of these are metallic oxides. When metal combine with oxygen, that will form metallic oxide. Now students, कैसा नेचर है? Either they are acidic or basic. Acidic है या basic? How can we confirm it? We can confirm it when sodium oxide is mixed with water. What will be the product? Sodium hydroxide. When sodium oxide combines with water, that will form sodium hydroxide. Sodium hydroxide, you know, it is an alkali. Alkali means it consists of hydroxyl group. So it is a base. And we can confirm it by taking a red litmus paper. When we take red litmus paper in aqueous solution of sodium hydroxide, the color of red litmus paper turns into blue. Blue color of litmus shows presence of base. Blue color of litmus shows presence of base in sodium hydroxide solution. It means ये जो color है वो किसकी वजह से? Sodium oxide की वजह से. It means metallic oxides are basic in nature in same way. When magnesium oxide combines with water, it will form magnesium hydroxide. Students, what will be the formula of magnesium hydroxide? Hydroxide is a group. It is hydroxyl group. और बेटा जब किसी ग्रुप की बात कर रहे हो तो क्या करेंगे? उसको ब्रैकेट में ले लेंगे. मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2 पॉजिटिव. हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी क्या है? 1 नेगेटिव. 1 को लिखने की नीड नहीं है. फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MgOH होल ट्वाइस. ये भी क्या है? जैसे ये अल्कलाइन था ऐसे ही ये भी क्या है? अल्कलाइन. यहाँ सोडियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड, वाटर, लिक्विड. और जो सॉल्यूशन बन गया वो क्या है बेटा? एक्वस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन है. ये भी क्या है? बेस. और किसकी वजह से? मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैसे चेक किया है ऑक्साइड्स का नेचर? हमने इन्हें वाटर में ऐड किया, डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन तैयार हो गया. ओके, फिर उसमें हमने लिटमस पेपर डिप किया. रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया. इट मीन्स बी ब्लू. ब्लू color shows presence of base in magnesium oxide, sodium oxide and all metallic oxides. It means metallic oxides are basic in nature. In same way, students, calcium combines with oxygen to form calcium oxide. Magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide. Aluminium will form aluminium oxide, Al2O3 students. Aluminium plus oxygen gas, ALO. अब फॉर्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव. बन गया फॉर्मूला. एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको लर्न करनी पड़ेगी ऑक्सीजन के पैरों में. ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के पैरों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसे भी अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा इट इज बेसिक इन नेचर. एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे ही जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, जिंक की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव. 2 ऑटो न्यूट्रल हो गया. जितना 2 पॉजिटिव उतना ही 2 नेगेटिव न्यूट्रल हो गई. चार्जेस तो लिखने की नीड नहीं है. जिंक ऑक्साइड. स्टूडेंट्स, ये 2 ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि एम्फोटेरिक. दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. These are amphoteric oxides. Amphoteric means amphoteric oxides means oxides which combine with both acids and bases to form salt and water. जो ये oxides हैं ये acid के साथ भी combine होते हैं, base के साथ भी combine होते हैं और क्या form करते हैं? क्या form करते हैं? Salt and water. ये amphoteric है दोनों, aluminium and zinc. और बाकी जो मेटल्स हैं वो क्या है? सभी बेसिक ऑक्साइड्स. बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड
and zinc oxide are amphoteric oxides. They combines with both acid and bases. Okay students, इनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है. ये हो गए amphoteric oxides. Now next है बेटा reaction of metals with water. स्टूडेंट्स वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करेंगे, सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल है. और वाटर कैसा है, वाटर का नेचर कैसा है स्टूडेंट्स? वाटर हॉट है, कोल्ड है, कैसा है? यहां हम कहते हैं एलिमेंट. नेक्स्ट हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर. ये एग्जाम में आया था अभी 6 मार्क्स में. कोल्ड वाटर, हॉट वाटर. नेक्स्ट स्टीम. ना स्टूडेंट्स एलिमेंट हम लेते हैं पोटाशियम. कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा. विग्रस रिएक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस करेगा. पोटाशियम प्लस कोल्ड वाटर, कैसा वाटर लिया हमने? कोल्ड वाटर. तो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम. स्टूडेंट्स इसे ऐसे समझ सकते हो, कैल्शियम. वाटर को मैं लिख सकती हूँ HOH. पोटाशियम पॉजिटिव, ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोक्सिल पे कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव. और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. और स्टूडेंट्स वैसे भी ये हाइड्रोजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ी थी. ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है? रिएक्टिविटी में कहाँ आता है? यहाँ. और पोटाशियम कहाँ पे है? सबसे टॉप पर है. तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा और कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोक्सिल से. और क्या फॉर्म हो जाएगा? KOH. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस. अब क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया. इस हाइड्रोजन से क्या निकलाएगी? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस क्या मिल जाएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी स्टूडेंट्स. और क्या होगा जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी? हीट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक्सप्लोसिव रिएक्शन. पता है स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन गैस क्रिएट होती है तो क्या होता है? पॉप साउंड क्रिएट करती है. अगर कोई बर्निंग स्प्लिंटर, कोई जलती हुई तिल्ली, मैच स्टिक या कैंडल, बर्निंग कैंडल तुरंत ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में लाओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी. और हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो क्या होती है? कंबस्टिबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है. ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन कंबस्टिबल नहीं है, ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होगी, दूसरे सब्सटेंसेस को बर्न करने में हेल्प करेगी. बट हाइड्रोजन खुद एक्सप्लोसिव है. क्या होता है? ये जो है जब फायर के सामने हाइड्रोजन जब फायर के कांटेक्ट में आएगी तो तभी एक्सप्लोड हो जाएगी, जल जाएगी. ये रिएक्शन होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. ये है हाईली एक्सोथर्मिक. पढ़ा था चैप्टर 1 में एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिनमें क्या होते हैं? हीट प्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट में. यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा ये. ओके. जब कोल्ड वाटर के साथ ऐसी रिएक्शन हो रही है तो हॉट वाटर के साथ तो और भी डेंजरस रिएक्शन होगी. तो इस रिएक्शन को हॉट वाटर या स्टीम के साथ नहीं करना क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा. जब कोल्ड वाटर में ऐसी डेंजरस रिएक्शन है तो हॉट और स्टीम में तो होगी, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे. ना स्टूडेंट्स सोडियम. सोडियम के साथ भी सेम है. सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं हम कोल्ड वाटर के साथ. कैसा वाटर है? कोल्ड. तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट सोडियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल के पैरों में, हाइड्रोक्सिल के 1 नेगेटिव सोडियम के पैरों में. 1 पॉजिटिव है इस कंपाउंड में और 1 नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया बेटा ओवरऑल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस. यहाँ आप स्टेट लिख देंगे बेटा, ये एक्वस, ये गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड आपकी नोटबुक्स में है. ओके. प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ये भी डेंजरस रिएक्शन है. हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव गैस है. फायर के कांटेक्ट में आते ही क्या होगी? एक्सप्लोड हो जाएगी, जल उठेगी और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी. नो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम कैल्शियम को ले लें तो कैल्शियम भी क्या है? काफी रिएक्टिव है बट इनके कंपैरिजन में कम है. अगर कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम रिएक्ट करता है तो क्या होगा? रिएक्शन तो होगी
रिएक्शन तो होगी, कैल्शियम वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स अब ये फॉर्मूला आना चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल के पैरों में और हाइड्रोक्सिल की 1 नेगेटिव, 1 को लिखने की नीड नहीं। Ca इसको रीड कैसे करते हैं, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और हीट भी होगी, लेकिन हीट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम। रिएक्शन जो है ना स्लो होगी। क्या होता है इस रिएक्शन में बेटा, ये अभी एग्जाम में भी आया था। देखो जो कैल्शियम है ना, किसी टेस्ट में अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, ये वाटर है, कोल्ड वाटर, तो कैल्शियम क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब वाटर में आप कैल्शियम पीस ऐड करते हो तो क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, या हीट ज्यादा नहीं होगी। वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, कैल्शियम से स्टिक हो जाएगी, बबल्स चिपक जाएंगे, कैल्शियम से स्टिक हो जाएगी और कैल्शियम क्या करेगा, सरफेस पर ही फ्लोट करने लगेगा। ये रिएक्शन कैसी है, स्लो। बट अगर हम हॉट वाटर में करें इस रिएक्शन को तो क्या होगा, तो बेटा प्रोडक्ट्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो काफी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा। रिएक्शन क्या थी, यहाँ तो स्लो थी, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी बेटा, फास्ट होगी रिएक्शन, प्लस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी इसमें। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर भी कैल्शियम फ्लोट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर कैसा है, हॉट वाटर में रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन जो है उसकी रेट बढ़ गई, हीट एनर्जी बढ़ गई। ओके स्टूडेंट्स, और स्टीम में भी ये होगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम और ले लेते हैं, काफी सारे मेटल्स हैं जो पूछे जाते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, या पूछा जा सकता है व्हाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड व्हेन मेटल्स कंबाइन विद वाटर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस एंड हाउ विल यू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ दैट गैस। कैसे चेक करते हो, कैसे करते हो, कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर जब उसके कांटेक्ट में लाओगे तो वो फायर क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो फायर क्या होगी, मतलब वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, जल जाएगी, जलेगी, बर्न होगी, साउंड क्रिएट होगा। जैसे बोतल का ढक्कन निकल पॉप, पीओपी पॉप, पीओपी पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स ना। स्टूडेंट्स जैसे कैल्शियम लिया हमने, ऐसे ही दूसरे भी है, मैग्नीशियम, ना स्टूडेंट्स, क्या मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम तो कर रहा था, लेकिन क्या मैग्नीशियम करेगा, नहीं करेगा स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम जो है रिएक्ट नहीं करेगा कोल्ड वाटर से। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन कोल्ड वाटर से होगी, नहीं होगी। हॉट वाटर के केस में क्या होगा, हॉट वाटर के केस में क्या होगा, जो काम यहाँ कैल्शियम के साथ कोल्ड वाटर में हो रहा था वो यहाँ मैग्नीशियम के साथ हॉट वाटर में होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला वैलेंसी आनी चाहिए, ब्रैकेट में ले लो ग्रुप को, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल की 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव को तो लिखने की नीड ही नहीं है, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है तो 1 ही है। प्लस क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, प्लस हीट तो प्रोड्यूस होगी लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। स्टूडेंट्स आपको इस हीट को इसके साथ ही लिखना है एक लाइन में, या थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा, इसमें भी जब वाटर के अंदर कोई मैग्नीशियम पीस हम ऐड करते हैं ना तो हीट कम है, यहाँ पर कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्शन स्लो है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो जो बबल्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से वो बबल्स, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना वो स्टिक हो जाती है,
चिपक जाती है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम को अपवर्ड फोर्स लगाती है, तो मैग्नीशियम ऊपर सरफेस पर ही फ्लोट करेगा, तो रिएक्शन होगी स्लो होगी। लेकिन क्या होगा अगर स्टीम के साथ ये रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या होगा, ये भी पूछा गया था सारा एग्जाम में 6 मार्क्स में। तो ये देखो स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम है स्टीम के साथ, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम की स्टीम, यानी वाटर ही है लेकिन उसका टेम्परेचर इतना हाई है, वाटर की स्टेट चेंज हो गई, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, मैग्नीशियम की स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होगा, अब हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं होगा, वाटर की वजह से हाइड्रो फॉर्म हो रहा था, वाटर की वजह से हाइड्रो फॉर्म हो रहा था, अब वाटर नहीं, वाटर की कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। तो जब मैग्नीशियम की रिएक्शन स्टीम से, भाप से करवा रहे हो तो क्या होगा, जब मैग्नीशियम की स्टीम के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तब प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा, ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जब वाटर के साथ हो रही थी तो हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब स्टीम के साथ होती है रिएक्शन तो क्या फॉर्म होता है बेटा, पता होना चाहिए, ऑक्साइड। स्टीम के साथ फॉर्म होगा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला देखो, मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव, बेटा ये हो गया बैलेंस, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, हीट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड ना बना के क्या फॉर्म होगा, मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ना स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इनकी, एल्यूमिनियम, जिंक, कार्बन, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होगी, इनकी रिएक्टिविटी दिख रही है आपको, तो नीचे आ गए, मिडल में कम है, हॉट वाटर में भी नहीं होगी, कहाँ होगी इनकी रिएक्शन, स्टीम के साथ। किसके साथ होगी, स्टीम के साथ। तो देखो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, आपकी नोटबुक्स में भी है, एल्यूमिनियम स्टीम के साथ कंबाइन करके, एल्यूमिनियम स्टीम के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखो फॉर्मूला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 ऑक्सीजन के पैरों में, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 एल्यूमिनियम के पैरों में, ऐसे ही जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, इन सब की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टीम से होगी। जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, क्या फॉर्म करेगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। सेम ऐसे ही लेड स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये सब जो है लेस रिएक्टिव है, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है। ये स्टूडेंट्स ये देखिए, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और स्टूडेंट्स कॉपर भी, इवन कॉपर, 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 सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसको यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सभी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स दे डू नॉट कंबाइन विद वाटर and in case of steam they will also not react. I hope is it clear to you and it is most important. ये 6 marks का था अभी. Okay students, now students, next reaction of metals with salt of some other metals means metal की reaction किसी दूसरे metal salt के साथ कैसे होगी. Reaction of metal with reaction of metal salt. Students, चलो एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बेटा.
रिएक्शन ऑफ metals with reaction of metals with other metal salts मीन्स कोई दूसरा सॉल्ट है मेटल का, उसके साथ मेटल की रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं। वी हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब्स। वन टेस्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ferrous sulfate FeSO4 and next tube consists of tube A, it is tube B. Tube B consists of copper sulfate. Now due to when we add copper to ferrous sulfate solution and when we add iron to copper sulfate solution, what will we observe? So color of copper sulfate solution is deep blue. कैसा कलर होता है इसका? डीप ब्लू। और फेरस सल्फेट का कैसा कलर होगा? कलरफुल होगा ये भी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगा। देखो स्टूडेंट्स, कॉपर और आयरन, ये कॉपर मेटल है, आयरन भी मेटल है, लेकिन रिएक्टिव कौन है कॉपर और आयरन में? स्टूडेंट्स देखें, कॉपर, iron is more reactive. In displacement reaction you have studied more reactive element displaces less reactive metal. More reactive less reactive को, it means iron more reactive है तो वो copper को displace करेगा, iron more reactive है तो वो सल्फेट के साथ combine होगा, कॉपर को हटा देगा, रिमूव कर देगा, जबकि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारी टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी, स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा बेटा? जो आयरन है इसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या करेगा? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, क्या फॉर्म करेगा? फेरस सल्फेट। इसका कलर बेटा कुछ ग्रीनिश होता है, फेरस सल्फेट का कैसा कलर होता है? ग्रीनिश। ठीक है, पहले तो एक बार ये ब्लू से क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस, और फिर क्या हो जाएगा? ग्रीन। कैसा हो जाएगा? ग्रीन। इसको काफी टाइम लगता है, कई आवर्स लग जाते हैं, 11 to 12 आवर्स लग जाते हैं। ओके, काफी स्लो रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? स्लो। यहाँ भी बेटा स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। आयरन सॉलिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एक्वस, फेरस सल्फेट क्या है? सॉल्यूशन एक्वस, और कॉपर क्या है? कॉपर सॉलिड है। ओके बेटा, आई होप इज इट क्लियर टू यू। जब मेटल की किसी दूसरे मेटल सॉल्ट की रिएक्शन होगी उसके साथ, तो क्या करेगा? वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही जिंक ले लें, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट ले लो इसके साथ,